Hello friends, this is Dr. Sunil Kadam welcoming you to my channel Let's Learn Accountancy with Dr. Sunil Kadam. On this channel, I will be uploading videos on various topics of accountancy. I hope you will enjoy this video. Let's learn the conditions for a buyback under Section 68 of Company Act 2013. कंडीशन मतलब आप कब बाई बैक कर सकते हो, कितना बाई बैक कर सकते हो, आप बाई बैक करते समय क्या नहीं करना है, क्या करना है, ये सभी का मार्गदर्शन सेक्शन 68 में दिया गया। तो वो क्या है देखते हैं। The first condition is for any company wants to go for a buyback, they should check is buyback is allowed to them as per their article of association. कोई कंपनी अगर बाईबैक के लिए जाना चाहती है तो उनको पहले देखना पड़ेगा कि उनके आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में उसकी परमिशन है। अगर परमिशन है तो ही जा सकते हैं, वरना नहीं। पहली कंडीशन। सेकेंड, a special resolution in a AGM, but prior to that, the board of director has to come up with a resolution, pass it for a buyback, and that resolution they have to send to the AGM, put it into the AGM, and in a AGM they have to get a sanction of with a special resolution, and then only they can go for buyback. अगर किसी कंपनी को बाईबैक के लिए जाना है तो पहले बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को अपना रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा बोर्ड मीटिंग में, फिर वो रेजोल्यूशन उनको रखना पड़ेगा एनुअल जनरल मीटिंग में, और एनुअल जनरल मीटिंग में उनको वो स्पेशल रेजोल्यूशन के पास करके फिर आगे बढ़ सकते हैं। दूसरा रिक्वायरमेंट है। उसके साथ साथ जब आप बाईबैक करोगे तो ध्यान रखना चाहिए कि आप फुल्ली पेड अप शेयर्स ही बाईबैक कर सकते हो, पार्टली पेड शेयर्स बाईबैक नहीं कर सकते। Only fully paid up shares can be brought back by a company. If company has a partly paid shares and the company wants to buy back, then the first task is to convert that partly paid up share into fully paid up. अगर कोई कंपनी के पास पार्टली पेड अप शेयर है और वो बाई बैक करना चाहते हैं तो पहले उनको उनको फुल्ली पेड अप में कन्वर्ट करना पड़ेगा। इसीलिए वो कंपनी को अपने शेयर्स का कॉल्स जो अनपेड कॉल्स है वो कॉल ड्यू करके कलेक्ट करना पड़ेगा, फिर उसके बाद ही कंपनी बाईबैक के लिए जा सकती है। कंपनी अगर बाईबैक कर रही है तो ऐसे नहीं कि कंपनी ने आज शुरू किया 5-6 साल चल रहा है, दैट इज नॉट परमिटेड। The company has to finish this activity within time frame given in a section 68 of company. So what is the time limit? The time limit is 12 months. A company has to finish its buyback within 12 months from the date of it started. 12 महीने के अंदर जो प्रोसेस बाईबैक का शुरू हुआ है वो कंप्लीट करना चाहिए। अगर नहीं करते हैं तो कंपनी को पेनलाइज किया जाएगा। कंपनी इज लायबल टू पे पेनल्टी। So what is the time limit? 12 months. Within 12 months, the company has to buy back. Company can buy back only from the existing shareholders. ऐसे नहीं कि कंपनी जो नया शेयर दिया और पूरा बाई बैक करने से पहले इश्यू किया और उनको ही वापस लिया। नो, कंपनी कैन डू बाई बैक फ्रॉम द एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स ओनली, एंड the company can buy only proportionate basis shares. Proportionate basis, for instance, shareholders holding say 100 shares, then company will work out what is the offered price and how much the offered is given, tender is applied by the shareholders, and then they will work out ki bhai, the company wants to buy back say 1 lakh shares and the applications have received for 2 lakh, then they will go with the proportion. So proportion, but in that they will come up with this. Those who applied for say 10 shares will get a we will buy of that applicants 50%. That's why 1:2. So
दे कैन गो विद द प्रोपोर्शन बेसिस, प्रोपोर्शनेट। अगर कोई बंदा 100 शेयर अगर होल्ड करता है तो उसके पूरे के पूरे 100 आप बाई नहीं कर सकते, आप उसके प्रोपोर्शनेट प्रोपोर्शन के साथ बाई कर सकते हैं। मतलब उसका 100 में से समझो 25 लिया, 50 लिया, 100 के 100 नहीं। उसके बाद कंपनी को अगर बाई बैक के लिए जाना है तो कंपनी हैज टू डिक्लेयर अ सॉल्वेंसी डिक्लेरेशन। व्हाट इज अ सॉल्वेंसी? मुझे जहां तक मुझे लगता है आपको मालूम होगा। सॉल्वेंसी मतलब कंपनी, एनी ऑर्गेनाइजेशन is called as a solvent organization when the organization has a good financial position. They are in a position to meet their requirement. They are ready to pay their liabilities. In other words, when the organization's assets are more than the liabilities, external liabilities is called as a solvent organization. अगर जब कंपनी बाईबैक के लिए जाती है तो लोगों के दिमाग में ये बस जाता है कि अरे कुछ गलत तो नहीं हो रहा है इसीलिए कंपनी बाईबैक कर रही है, या कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन क्रिपल तो नहीं हुई है इसकी वजह से कंपनी बाईबैक कर रही है। ये ऐसे लोगों में गलतफहमी हो सकती है। तो इसको निकालने के लिए जो एक्ट है, एक्ट कहता है कि ये कंपनी पहले अपना सॉल्वेंसी डिक्लेरेशन करे। सॉल्वेंसी डिक्लेरेशन में ऐसा नहीं कि एक चीट पे लिखा और डिक्लेयर कर दिया। इट इज अ प्रॉपर प्रोसीजर, इट हैज टू बी डिक्लेयर्ड थ्रू द रजिस्टर ऑफ अ कंपनी। तो रजिस्ट्रार के थ्रू जाना है तो झूठ नहीं बोल सकते, आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी दिखाने पड़ते हैं, एंड इट इज ऑडिटेड बाय द चार्टर्ड अकाउंटेंट। तो कोई भी ऐसे जाके नहीं बोल सकता मेरी कंडीशन अच्छी है तो डोंट वरी, नो यू हैव टू प्रूव इट, एंड उसके बाद ही आप बाय बैक कर सकते हैं, सॉल्वेंसी डिक्लेरेशन करने के बाद। देन जो भी आप कंपनी जो शेयर्स बाय बैक करेगी, द कंपनी जो भी शेयर्स कलेक्ट करेगी, जो पैसा वापस करने के बाद उनके शेयर सर्टिफिकेट आइदर इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में आए या फिजिकल फॉर्म में आए, वो सभी को डिस्ट्रॉय करना पड़ेगा। नहीं तो क्या होगा, वही शेयर लेके दूसरा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में दूसरा कोई आएगा और बोलेगा मेरा भी ड्यूज बाकी है, पैसा दे दो या डिविडेंड दे दो। तो ऐसा मिसयूज ना इसीलिए जो भी शेयर्स बाईबैक किए जाते हैं और कंपनी के पास वापस आते हैं उनको डिस्ट्रॉय करना पड़ता है। उसको अनदर वर्ड में बोलते हैं एक्सटिंग्विशिंग, नष्ट करना। जैसे ना फायर एक्सटिंग्विशर बोलते हैं, फायर एक्सटिंग्विश करते हैं, फायर को नष्ट करते हैं, वैसे ही शेयर सर्टिफिकेट्स को एक्सटिंग्विश करना है, डिलीट करना है। अगर अगर इसमें फॉर्म ई फॉर्मेट में है, उसको डी फॉर्मेट, डीमटेरियलाइज फॉर्मेट में है। डिमैट अकाउंट आपने सुना होगा, डीमटेरियलाइज और मटेरियलाइज, मतलब जो फिजिकल फॉर्म में है उसको छोटे छोटे हिस्सों में काटो या जला दो। तो डिस्ट्रक्शन ऑफ शेयर्स और एक्सटिंग्विशन ऑफ शेयर सर्टिफिकेट इज इंपॉर्टेंट, ये भी करना पड़ेगा। और कंपनी को ये ध्यान में रखना है कि जो शेयर्स बाई बैक किए वो दोबारा इश्यू ना करे। द कंपनी कांट री इश्यू दी ब्रॉड बैक शेयर्स विद इन सर्टन लिमिट। वो बाद में अगर जरूरत पड़ी तो इश्यू कर सकते हैं, मगर जो आपने अभी परचेस किया वो कम से कम 1 साल तक वो दोबारा बाई री इश्यू नहीं कर सकते। or and a company has to create a capital redemption reserve to the extent what the company wants to brought back the shares. The creation of capital redemption reserve is mandatory. कंपनी ने जितने शेयर्स ब्रॉड बैक करने हैं उतने उतने अमाउंट के उतने अमाउंट का कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व क्रिएट करना पड़ेगा। सेक्शन 69 के तहत ये रिक्वायरमेंट है। 68 से लेके 69 तक, 69(1) में ये बोला गया कैपिटल रिडम्पशन क्रिएट किया जाए। और कैपिटल रिडम्पशन कैसे क्रिएट कर सकते हैं? आउट ऑफ फ्री रिजर्व, सिक्योरिटी प्रीमियम, जो हमने बोला कि बाईबैक के लिए कौन से फंड्स अवेलेबल है, तो ये हमें ध्यान रखना पड़ेगा। और लिमिट ऑफ बाईबैक, अभी यहां तक तो ठीक है, हम समझ लिए। अभी कितना हम बाईबैक कर सकते हैं? समझो कंपनी के पास 10 लाख शेयर है, उसमें से कंपनी कितना बाईबैक कर सकती है? तो सेक्शन कहता है, जो
सेक्शन 68 ऑफ कंपनी एक्ट कहता है कंपनी मैक्सिमम 25% ही बाईबैक करती है ऑफ इट्स पेड अप कैपिटल। मैं दोबारा रिपीट करता हूं, टोटल 25% ऑफ पेड अप कैपिटल, टोटल मतलब मैक्सिमम, उससे ज्यादा नहीं, उससे कम कर सकते हो। ये आ सकता है फिलिंग द गैप्स, और फिलिंग द गैप नहीं, मल्टीपल चॉइस में कितना बाईबैक हो सकता है, कितना परसेंट। इफ इट इज अमाउंट के साथ है 25%, इफ इट इज नंबर ऑफ शेयर्स है तो भी 25% ऑफ नंबर ऑफ शेयर्स व्हाट द पेड अप कैपिटल, नॉट from the authorized, neither issued and subscribed capital, it is paid up capital. So 25% of paid up capital, what the amount you can buy back, or the 25% of the number of shares, what is paid up capital, that can be brought back by a company. कंपनी यहां तक बाईबैक कर सकती है। एंड company has to maintain a debt equity ratio 2:1। कंपनी को डेप्ट इक्विटी रेशियो 2:1 मेंटेन करना पड़ेगा। इफ दैट इज नॉट पॉसिबल देन कंपनी कांट गो फॉर अ बाईबैक। व्हाट इज अ डेप्ट इक्विटी रेशियो? डेप्ट इक्विटी रेशियो मतलब जो ओनर है और लेनदार है, जिनसे लोन लिया, उनके बीच का प्रपोर्शन। अगर आपके पास 2 रुपए है, नहीं 1 रुपए है, तो आप बाहर से 2 रुपए उठा सकते हैं, ये स्टैंडर्ड है। मगर ये बाईबैक होने के बाद अगर ये मिनिमम 2:1 नहीं रहता है तो आप बाईबैक, मतलब बाईबैक करते समय ध्यान रखो उतने का ही करो कि आपका 2:1 के नीचे ना जाए। ये जो अभी कंडीशंस हमने डिस्कस की है, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। हो सकता है क्वेश्चंस पूछा जाए, what is mean by buyback of equity shares or buyback shares, and explain in details the terms and condition for buybacks mentioned in the section 68 of Company Act 2013, then at that time you should be in a position to answer this. So what you will say, the company can only go for buyback when it is authorized in article of association. Then the company has to pass a special first resolution in a board of directors, then special resolution in a AGM. Then the company only can buy back those shares which is fully paid. If it is partly paid, they have to convert it into the fully paid up shares. The company has to finish this activity within 12 months. If it is not, then the company will be penalized. For the company can buy back shares from the existing shareholders only and in a proportion basis only. Before going for a buyback, company has to declare the solvency declaration. They have to come up with the solvency declaration to avoid the misunderstanding amongst the stakeholders, not only shareholders. Other stakeholders may get confused because of the buyback process. And whatever shares have been received by the company has to be destroyed. It has to be extinguished. Either it is in a physical form or it in a demat form. That the company cannot reissue the same share which is brought back at least for 1 year. Capital redemption reserve has to be created to that extent what the company wants to buy back the shares. And maximum limit is 25% of paid up capital, or number of shares also 25%. That paid up capital can company maximum can brought back, can purchase back. And they have to ensure that debt equity ratio should remain 2:1. This is what a condition the company has to follow or understand to maintain for buying back the shares. So I hope you understood this. चलो ठीक है, हमने सीखा कि भाई बाईबैक कैसे कर सकते हैं, मगर बाईबैक करते करते कैसे करें, मेथड्स है ना, वो एक्चुअल ग्राउंड रियलिटी में करते समय कैसे करें. देयर आर 3 मेथड्स ऑफ बाइंग बैक. 1, it is called as a buyback through the tender offer. 2, buyback through the open market. And 3rd, buyback through book building process. Let me tell you, कंपनी 3 तरीके से जो अपने शेयर्स है, वो मतलब तरीका मतलब क्या है ना, वो उनकी अलग अलग प्रोसेस होती है. आप इधर देयर इज नो कंपल्शन कि आप इसी मेथड से ही करो. आप कंपनी को जो सूटेबल लगता है
उनके हिसाब से जो अपने शेयर होल्डर्स के लिए अच्छा है, कंपनी के लिए अच्छा है, वो मेथड अडॉप्ट कर सकते हैं। मगर तीन डिफरेंट तरीके हैं बायबैक करने। पहला वाला बायबैक थ्रू द टेंडर ऑफर, दूसरा वाला बायबैक थ्रू द ओपन मार्केट, एंड बायबैक थ्रू द बुक बिल्डिंग। ये तीनों तरीके अपने अपने जगह पे ठीक ठाक है। तो चलो जानते हैं कि भाई व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बायबैक थ्रू टेंडर। डिफरेंस नहीं, सीखते हैं थोड़ा थोड़ा, डिफरेंस तो टाइम बहुत जाएगा, मैं बताऊंगा। नाउ यू कैन कंपेयर एंड डिस्कस इट। सो लेट अस डिस्कस फर्स्ट बायबैक थ्रू द टेंडर ऑफर। नाउ यू नो व्हाट इज a टेंडर मेथड. Everyone knows it. Anywhere, whenever a company wants to go for any contract, then they used to ask a tender. तो टेंडर क्या होता है कि जो भी कोई आप चीज करने वाले हैं, हम लोगों को बोलते हैं भाई ये हमको करना है। जो कोई करना चाहता है वो अपने कॉस्ट के साथ यहाँ बता दो, मगर जिसकी कम कॉस्ट है हम उसको लेते हैं। तो ऐसे ही यहाँ बाईबैक के लिए तो वो बोलेंगे देखो भाई हम बाईबैक करने जा रहे हैं, जिनको जिनको अपने शेयर्स देने हैं, और आप क्या प्राइस लगाते हो अपने शेयर्स की वो बताओ। तो कंपनी वो सभी के टेंडर्स पढ़ाई करेगी, और उसमें से वो जो कम वाले हैं, मगर कंपनी जब बाईबैक के लिए आती है वो अपना बेस प्राइस निकल के आती है, लेके आती है बेस प्राइस, हम यहां से यहां तक लेना चाहते हैं। तो कौन कौन, तो अपना बताओ। तो लोग अपने अपनी टेंडर डालेंगे, मैं इतने में देने के लिए तैयार हूं, मैं इतने शेयर्स देने के लिए तैयार हूं। तो ये टेंडर ऑफर किया जाता है। ये एक तरीका है जिसमें आपको कंपनी को बताना पड़ेगा कि भाई हम इतना शेयर्स बाईबैक करना चाहते हैं, हमारी लोवेस्ट प्राइस ये है और मैक्सिमम ये प्राइस में हम बाईबैक करना चाहते हो, तो आप बताइए आप कितने में देंगे। जो बेचना चाहेगा वो कंपनी को अप्लाई करेगा कि भाई ठीक है आप बोलते हो तो मैं ऊपर वाला जो अपने प्राइस बताए उसमें देने के लिए तैयार हूं, मेरे पास 100 है, मैं 50 शेयर्स वापस करने के लिए तैयार हूं। ये टेंडर आ गया। ऐसे ये टेंडर जब होता है ना बाईबैक के लिए, द कंपनी has to keep that period minimum से मैक्सिमम 15 दिन तक रख सकते हैं, और कम से कम 7 दिन तक। नहीं कम से कम 15 दिन और मैक्सिमम 1 महीने तक वो रख सकते हैं पीरियड फॉर ये पूरा प्रोसेस कंप्लीट करने के लिए। और जो टेंडर ओपनिंग है ना उसके लिए कम से कम 7 दिन से लेके 30 दिन तक वो कंप्लीट करना चाहिए। 15 दिन से लेके जो 30 दिन तक के अंदर वो सब रिसीव होगा, और वो प्रोसीजर कंप्लीट करनी पड़ेगी। और फिर जब एप्लीकेशन आएंगे तो कंपनी क्या करेगी, कितने एप्लीकेशन आए हम कितना करना चाहते हैं उनको प्रोपोर्शनेट बिड अलोकेट कर लेगी। मगर ऐसा अगर करना है तो कंपनी को क्या करना पड़ेगा, एक अकाउंट ओपन करना पड़ता है बैंक में। इट इज कंपल्सरी रिक्वायरमेंट ऑफ सेबी। सेबी का बाईबैक के ऊपर सेबी के भी लॉस लागू होते हैं। तो सेबी कहता है कोई कंपनी अगर अपने शेयर्स ब्रॉट बैक करने जा रही है तो उनको एक अकाउंट में पैसे बाजू में रखना पड़ेगा। नहीं तो कोई बोलेगा मैं बाईबैक के लिए जा रहा हूं मेरे पास पैसा ही नहीं है, तो लोग पैसे शेयर्स वापस कर रहे हैं उनको पैसा देना पड़ेगा। तो वो जितना भी आप बाईबैक करना चाहते हो, अगर आपका बाईबैक समझो 100 करोड़ के तक है, 100 करोड़ तक अगर कोई बाईबैक है, मैक्सिमम लिमिट में बात कर रहा हूं, 100 करोड़ तक का अगर बाईबैक है तो कंपनी को उसका 25%, जितना भी बाईबैक समझो मेरा 1 लाख का बाईबैक है तो 25% इज 25,000, the company has to keep in a separate account called as a escrow account. ये escrow account ओपन करना पड़ेगा, वो सेपरेट अकाउंट ओपन करना पड़ेगा नेशनलाइज बैंक में। वहां पे एक अकाउंट ओपन करके उसके अंदर 25 लाख, अगर आप 1 लाख शेयर बाय बैक करने जा रहे हो तो 25 लाख, सॉरी 25,000 उसमें रखना पड़ेगा। ये मिनिमम। अगर 100 करोड़ है तो 100 करोड़ का 25% अमाउंट दे हैव टू कीप इनटू दी दैट पर्टिकुलर एस्क्रीव अकाउंट। क्यों, अगर कंपनी ने ये सब कुछ टाइम पे कंप्लीट नहीं किया तो उनको पेनलाइज किया जाएगा, यहां से पैसा सेबी लेगा। इसीलिए दी एस्क्रीव अकाउंट ओपन करना कंपलसरी है। ये सब होने के बाद द प्रोसेस विल बी कंप्लीटेड, देन द कंपनी हैज टू पे द अमाउंट। जैसे वो जो जो टेंडर के हिसाब से आया उनको पैसा पे करना पड़ेगा, और उसके बाद शेयर सर्टिफिकेट मिलेंगे, उसको एक्सटिंग्विश करो, शेयर सर्टिफिकेट को डिस्ट्रॉय कर दो। ये रहा प्रोसीजर ऑफ बाइंग थ्रू टेंडर ऑफर।
So the next method is a buyback through the open market. This is more practicable or more acceptable method, buying back through the open market. But in this method, there is no compulsion of opening a escrow account. But here, buying back from open market, it can cost more than the other two methods, because here, as per this method, the company has to buy on the price which is available in the market. Therefore, this method, it's quite ज्यादातर लोग इसको क्यों नहीं करते, मगर वो जो प्राइस पे आते हैं ना, वो पहले डिक्लेयर कर लेते हैं, इसीलिए मार्केट प्राइस से थोड़ा कम ज्यादा हो सकता है. So let us understand what exactly you have to do. First, you have to specification of maximum price of a public announcement. That's what I said. First, company has to declare we are going to buy back through the open market, and our minimum and maximum price. In all these three methods, you have to come up with the what is your minimum price and what could be maximum amount you will give for a buyback, and that has to be passed in a board of meeting, and then it has to be accepted into the AGM. उधर मंजूर हुआ है और वही के साथ आगे बढ़ना पड़ेगा. तो जो एक्सेप्ट हुआ वो लोगों को पहले बता दो और पब्लिक को अनाउंस करो कि हम भाई ये शेयर्स है हमारा 100 का, हम 150 में वापस ले रहे हैं, कम से कम 150 में, ज्यादा से ज्यादा हम 200 रुपए दे रहे हैं. This is what a specification of minimum and maximum price of buyback. उसको बोलते हैं offer price. How much you are offering for your share is offer price. So you have to tell what is the minimum offer price and maximum offer price for buying back the shares has to be mentioned. Then you have to carry out these buyback through the stock exchange. ये stock exchange के through होगा. और पहला वाला था ना, उसको आप mercantile bank को अपॉइंट कर सकते हैं to look after your buyback. If you are busy with other work, you can give this work to the mercantile bank. Mercantile bank, I hope you know what they do. It's a type of bank who helps the corporate sector to finance their requirements, or to look after their share issues, share redemption, share buyback. They work on that only. So they can appoint mercantile bank. The two methods: buyback through the tender offer, you can appoint a mercantile bank, or buyback through the book building also, you can appoint a mercantile bank to look after. But buyback, you can't appoint mercantile bank. You have to do it through the stock exchange. Then whatever certificates you have to pay it, and then whatever certificate is received has to be extinguished. And the last method is buyback through the book building process. Under this method, again, you have to. There is one other question may in your mind. If it is more than 100 crore, then how much amount I have to keep it into the escrow account? Again, the escrow account is to be open. In that case also, you have to keep there. If it is more than 100 crores, then up to 100 crores, 25% of that amount means 100 crore ka 25%, 25 crore. 25 crores you have to keep it, plus above 100 crore, whatever your buyback is there, uska bhi 10%. 10% of that additional amount has to be kept into the escrow account. Ek account mein rakhna padega. Then you have to start book building process. So what is the process of book building? Book building is carried out normally through the electronic linked transcript फैसिलिटी. एक है जो इलेक्ट्रॉनिक्स की तरह होता है, जैसे कि अपना स्टॉक एक्सचेंज है वैसा ही होता है, मगर वो अलग काम करता है. स्टॉक एक्सचेंज जैसा नहीं होता है, वो अपने अपने सेंटर्स लगे रहते हैं, ऑनलाइन होता है. उसमें आप कम से कम 30 सेंटर्स, कम से कम 30 सेंटर्स लगाने पड़ेंगे, जहां पे लोग अपना इलेक्ट्रॉनिकली कंप्यूटर से लिंक्ड होंगे, और वो बाईबैक के लिए जो 15 दिन या 30 दिन है उसके दौरान वो अपना प्राइस उसमें मेंशन करेंगे. और ये मर्केंटाइल बैंक थ्रू कर सकते हैं और अपना
ये बुक बिल्डिंग कंप्लीट होगा और सभी लोगों का इकट्ठा लेके फिर पता चलेगा कि कितना हम पे कर सकते हैं, और उसमें भी मिनिमम और मैक्सिमम ऑफर प्राइस दिया जाता है। उसी के बीच में ही ये लोग अपना ऑफर, वो अपना ऑफर प्राइस बताएंगे वो कितने में वापस कर रहे हैं। सो यू हैव टू कंप्लीट द बुक बिल्डिंग प्रोसेस विद इन 30, नॉट मोर देन 30 days, विद इन less than, not less than 15 days और not more than 30 days में कंप्लीट करना है। देन the price fixation through Dutch action method, जो भी आएगा सभी का बुक बिल्डिंग जो पता चलेगा, प्रोसेस पता चलेगा, उसके बाद प्राइस डिटरमाइन होगा अंडर डच एक्शन मेथड। मतलब क्या है, शेयर होल्डर को हमने पूछा था ना कि भाई भी कितना आप बोल सकते हो, उन्होंने दिया हुआ प्राइस का जो अमाउंट है उनको उनको देख लेते कि भी उसमें ज्यादा कितना है और उसमें कम कितना है। तो दोनों के बीच में प्राइस को, तो जो 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 मार्केट वाला प्राइस है ना, 52 मार्केट में जो प्राइस है ना, 52 वीक में मार्केट प्राइस निकाला जाता है अपने शेयर्स का, और हाई प्राइसेस है, और जो प्राइस डिसाइडेड बाय प्रॉफिट अर्निंग कैपेसिटी वैल्यू, कंपनी का ईपीएस के हिसाब से प्राइस डिसाइड होता है, उन दोनों के बीच में से प्राइस, वो ये डच मेथड उसको कहा जाता है। देयर आफ्टर द शेयर होल्डर्स आर एंटाइटल्ड टू बिड द शेयर्स। तो ये प्राइस फिक्सेशन थ्रू डच ऑक्शन मेथड वो कैसे होता है, तो पहले कंपनी क्या करेगी कि पिछले 52 वीक्स में हाई प्राइस जो रहा उसका प्राइस लेंगे, दैट इज अ मैक्सिमम, एंड ईपीएस के हिसाब जो प्राइस बनता है वो लेंगे। ये दोनों के बीच में जो प्राइस आएगा वो प्राइस होगा मैक्सिमम मिनिमम ऑफ प्राइस। फिर आप कलेक्ट करो वेरिफिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस, जो भी लोगों ने जो ये दिया, ऑफर दिया, उनका वेरिफिकेशन करो, देन पे टू देम, एंड लास्टली सर्टिफिकेट को डिस्ट्रॉय करो। दिस इज व्हाट अ मेथड ऑफ बायबैक. So I hope you understood. Company can go with the three different ways are there, but they have to adopt one of it. So they got a choice to decide. But in all three methods, they can offer a minimum price, offer price, and maximum offer price. And then the people has to decide to what extent, to what price they are going to give, sell their shares, and the company will buy back. Thank you guys for watching this video. If you have any queries, doubt, difficulties, or feedback, feel free to write in comment section. I will try to answer them as early as possible. Make sure to hit the like button if you understood the concept explained in this video. If you would like to see more such kind of videos, don't forget to subscribe this channel. Make sure to hit the bell icon as well in order to get the notified whenever I upload a new video. Share this video with your friends in order to make them benefit out of this as well. Thank you once again.